یہ ویکلی ہوراسکوپ 4 اپریل 2025 سے لے کے 10 اپریل 2025 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 3 اپریل 2025 سے لے کے 10 اپریل 2025 پر مبنی ہے۔ یہ ایام علمی حوالے سے بہتری اور کام کے حوالے سے آسانی کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن اور غصے کو بھی ابھاریں گے۔ تبھی تمام برج والے جتنا اپنے غصے کو قابو رکھیں گے اتنے ہی فتح و کامیابی کے اسباب ساتھ ساتھ ہوں گے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائی جائیں۔ اگر سبز پھل زیادہ استعمال کرتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے، حاضر دماغی کے لیے، مستقل مزاجی کے لیے، میٹھی گفتگو کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان ایام میں کوشش کر کے ڈارک کلر کو کم، لائٹ کلر کو زیادہ پہنا جائے تو بہتر ہے۔ آئینہ کم دیکھا جائے تو بھی بہتر ہے۔ اسکرین سے تھوڑا سا دور رہا جائے تو بھی تمام برج والوں کے لیے بہتر ہے۔ بزنس کے لیے یہ ایام بہت ہی مبارک ہے، لیکن مشاورت بزرگوں سے کی جائے، صرف دوستوں سے نہیں۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز چیز کا ہے۔ جتنی دامن میں وسعت و صاحب ہے سبز چیز، جتنی دامن میں وسعت و صاحب سے سبز پھل لے کے، سبزی لے کے یا باجرہ لے کے کسی مستحق کو دے تو انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا رحمان 27 مرتبہ۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی کے راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ابھی زندگی میں چڑچڑاپن بھی آئے گا، اختلافات بھی آئیں گے، ازدواجی حوالے سے جھگڑے بھی ہوں گے اور کسی غصے میں، کسی جلد بازی میں آپ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تبھی زبان کو میٹھا رکھیں، حاضر دماغ کو قائم رکھیں، آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ سبز پھل زیادہ کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، پانی زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ یعنی میں کوشش کر کے کسی بڑے سفر کو نہیں جاتے تو بہتر ہے۔ کسی چیز کو چھوڑنے میں دیری کرتے ہیں، کسی چیز کو چھوڑنے میں جلد بازی نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جتنا لال مرچ کم کھائیں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ روز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے تو بہتر ہے۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے، بشر مشاورت بزرگوں سے کر کے اس کے بعد ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلیمانی عقیق وہ پتھر ہے جس میں کن کے اوصاف ہوتے ہیں۔ تبھی یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری خاص اسم اعظم چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہ دم کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اب جو بھی انسان یہ چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہن کے جہاں جہاں قدم اٹھائے گا دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ جس بھی حاجت کو دل میں رکھے گا قدرت اپنی غیبی اسباب کے ساتھ اس کے قدموں تلے اس کا رستہ ہموار کرے گی اور اس کی سکس سینس اتنی روشن ہوگی کہ وہ جس بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا اس کا اصل روپ فوراً پہچان لے گا۔ نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو، تعویذات ہو، کبھی بھی اس انسان پہ حاوی نہیں ہوں گے جس کی سن فنگر میں یہ چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم شدہ سلیمانی عقیق پہنا ہوا ہوگا۔ دادا شاہ شمس کے بعد ان کی اولاد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی، سید تاج الدین شمسی، بی بی امام بیگم شمسی، بی بی بادشاہ دادی شمسی، پشت در پشت ہم تک آج بھی چاند گرہن کے وقت یہ سلیمانی عقیق پڑھ کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہی ہے۔ تو یہ جو گرہن رمضان میں لگ رہا ہے، اس گرہن میں ہم نے آپ کے لیے یہ سلیمانی عقیق جو چاند گرہن کے وقت خاص اسم اعظم کے ساتھ دم کیا جاتا ہے، جس میں روحانی طاقت ہوتی ہے، آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ یاد رہے یہ چاند گرہن کے وقت پڑھے ہوئے سلیمانی عقیق محدود مقدار میں ہیں، تو آج ہی مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور یہ چاند گرہن کے وقت اسم اعظم دم شدہ سلیمانی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر
हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहबानअली.com पे आएं और ये चांद ग्रहण के वक्त खास इसमें आजम दमशुदा सुलेमानी अकीक किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। बुर्ज तौरस वाले ये वो हैं जो आपको अल्लाह के करम से फतेह, कामयाबी और इल्मी हवाले से बड़ा मर्तबा देंगे। बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, किसी काम की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो ये अय्याम आपके लिए बड़ा ही मुबारक होने वाले। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपकी वो मुरादें पूरी होंगी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रौनक आ उभरेगी। पर जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें, क्योंकि ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए काफ़ी चीज़ों को रोक देंगी। अल्लाह के फजल से एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसके तवज्जो से आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी हाजिर दिमागी के साथ मीठी ज़बान को कायम रखें और अपनी आंखों को रोशन रखें, क्योंकि आसपास कोई अच्छा मोहसन दोस्त आपकी मदद करने को आ रहा है। बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो मुबारक है, बशा मुशावरत बुजुर्गों से करें। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और उसमें आप स्क्रीन दे सकते हैं। बड़े जेमिनाई वाले ये याम आपको किसी बीमारी से मिला सकते हैं, ये याम आपको तल्ख कलाम बना सकते हैं, ये याम किसी अपने से झगड़ा करवा सकते हैं। याद रहे, झगड़े से दूरी इख्तियार करें, मीठी ज़बान को कायम रखें। जितना हाजिर दिमागी पे तवज्जो देंगे, मीठी ज़बान को कायम रखेंगे, उतना ही फतेह व कामयाबी के असबाब आपके साथ साथ होंगे। ये अय्याम इल्मी हवाले से भी आपको बड़ा मर्तबा देंगे। तभी जितना हो सके आप ख़ुद को खुद में मसरूफ़ करें, हाजिर दिमागी पे तवज्जो देंगे, काम के हवाले से ख़ुद को मसरूफ़ करेंगे तो अच्छी अच्छी राहें आपसे जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर तल्ख कलाम होंगे तो आपके लिए परेशानियाँ मंजर आम पे आ सकती हैं। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक भी जाते तो बेहतर है। नियाम अगर सब्ज़ फल ज़्यादा खाते हैं, सुबह के आगाज़ में नीम गर्म दूध पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। जितना हो सके फिलहाल बिज़नेस पे तवज्जो दें, क्योंकि बिज़नेस से कोई तरक्की और कामयाबी आपको आ मिलेगी। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का उससे स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले ये वो है जो इमोशनली आपसे कोई बड़ा रुतबा हासिल करवाएंगे। अल्लाह के फजल से आप में रूहानियत आएगी, आपकी दुआ और बद्दुआ में असर होगा, आप पे इल्हाम ज़्यादा होंगे। अल्लाह के फजल से आपकी दुआएं जल्दी कबूल होंगी और आपकी बद्दुआ भी जल्दी लग जाएगी और लोगों का असल रूप आपके नज़दीक वादे होगा। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके वादे होंगी। बस परख लें, समझ लें, वक्त का इंतज़ार करें। अगर आप वक्त से पहले लोगों को बेनकाब करेंगे, वक्त से पहले चीज़ों को बेनकाब करेंगे, तमाम परेशानी मंजर आम पे आ सकती है। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। मसनू में मिठा हफ्ते कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। अभी जितना हो सके वो फ़ौरन न कहें जो दिल में आता है, जितना ठहर ठहर के बात करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी मर्तबे आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के फजल से ये हम आपको रूहानी ताकत के साथ कोई बड़ी मंजिल देने आए हैं। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का उससे स्क्रीन दे सकते हैं। इंसान की पहचान ही कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा। आज कल और परसों अगर आप ये नीलम पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ सुलेमानी अकीक आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये पढ़े हुए सुलेमानी अकीक महदूद मिकदार में हैं। बुर्ज लियो वाले ये अय्याम मर्तबे खुशी और मंजिल से मिलाएंगे। अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी तो आएगी, लेकिन एक छोटा सा हादसा भी दिखेगा, एक छोटा सा दुख भी दिखेगा, सेहत के हवाले से परेशानियाँ भी आएगी। याद रहे सेहत के हवाले से सदका निकालें। अगर पीली चीज़ का सदका निकालते हैं, सब्ज़ चीज़ का सदका निकालते हैं, गोश्त का सदका निकालते हैं, तीनों चीज़ों को मिला के तो आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा, क्योंकि बीमारी, हादसा, परेशानी और नुकसान ज़ायची में दिख रहा है। हाँ, बिजनेस के हवाले से फ़ायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन वो फ़ायदे इतने मध्यम लगेंगे और नुकसान आपके सामने जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़बान को मीठा रखें, जल्दबाजी से दूर रहें, दूसरों के मसाइल में न पड़ें और 1 से 2 घंटे अपनी सेहत को दें। इंशाल्लाह तमाम परेशानियाँ दूर होंगी। पानी सबसे ज़्यादा पीते हैं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का और उसमें आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वाले ये वो है जो आपको किसी इंसान के सामने वाज़ेह करेंगे और कोई इंसान आपके सामने वाज़ेह होगा। तभी जितना हो सके लोगों के असल रूप देखें, लोगों के असल रूप परखें और वो न कहें जिसमें हिकमत अमली नहीं है। कदम हिकमत अमली के साथ उठाएंगे, इमोशनल फैसलों से दूर होंगे तो इंशाल्लाह तमाम परेशानियों से आप दूर होंगे। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएंगे तो वो भी बेहतर है। डार्क कलर सबसे कम पहनेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर है। सब्ज़ फल ज़्यादा खाया करें, सब्ज़ रंग ज़्यादा पहना करें तो अल्लाह के फजल से तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे होंगी। फिर वक्त हाजिर दिमागी को कायम रखें। आपका हाजिर दिमाग होना, आपका मुतमईन होना आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा।
इतना हो सके फिल वक्त मसनूई मिठास की चीज़ें सबसे कम खाएं और ज़्यादा टेंशन ना लें। गुजरे हुए वक्त को भूल जाएं, आने वाले वक्त को छोड़ दें, आज में रहें, पुरसुकून रहें, कुछ वक्त अपनी खुशी के लिए, कुछ वक्त अपने काम की रखें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, और इसमें आप बता सकते हैं बुर्ज लिब्रा वाले, ये वो अय्याम है जो आपको बिज़नेस के हवाले से तरक्की देंगे, कामों में आसानी देंगे, क्योंकि अच्छा वक्त आपका शुरू हो चुका है। इल्मी हवाले से बड़ा मर्तबा मिलेगा, काम के हवाले से आपको आसानी मिलेगी। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो दिन आपके आ रहे हैं जिन अय्याम में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इंटरनेट के तवज्जुह से काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक है। कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या बिज़नेस सीखने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक है। लाइट कलर सबसे ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने, और किसी बड़े सफ़र को नहीं जाते तो बेहतर। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, और उसमें आप बता दे सकते हैं बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये अय्याम आप किसी से झगड़ा करेंगे, किसी से लड़ पड़ेंगे, और वही लड़ाई आपकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी लाएगी। याद रहे, परेशान होना, जल्दबाज होना, ज़्यादा गुस्सा करना छोड़ दें। मीठी ज़बान को कायम रखें। आधा घंटा 1 घंटा ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पानी है, दरिया किनारे, समंदर किनारे, नहर किनारे कुछ देर बैठ जाएं। इनसे आपके तमाम नेगेटिव असरात ख़त्म हो जाएंगे, दिल में पॉजिटिव एहसास पैदा होंगे, हाजिर दिमागी के साथ तरक्की और कामयाबी की तरफ आप बढ़ेंगे। अल्लाह के फजल से आपके अच्छे अय्याम शुरू हैं। अब अच्छे फैसलों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिल वक्त लाल कलर कम देखते हैं, लाल मिर्च कम खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक है। कोशिश करके दोपहर के दही का इस्तेमाल करें तो वो भी आपकी सिक्स सेंस के लिए, हाजिर दिमागी के लिए, मीठी ज़बान के लिए बहुत ही मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट का सही वक्त ये है, बशर्त मुशावरत बुजुर्गों से करें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, उसमें बता की बात दे सकते हैं। इस जमीन पे तमाम पत्थरों का बादशाह याकूत पत्थर है, क्योंकि ये पत्थर पहने हुए इंसान को इल्हाम से जोड़ता है, और जिस भी इंसान की सन फिंगर में ये पत्थर पहना हुआ होता है तो उसको वक्त से पहले वक्त का पता चलता है। कोई भी मुसीबत उस पे अगर आने वाली होती है तो उस पर इल्हाम होता है। तभी इस पत्थर को तमाम पत्थरों का बादशाह कहते हैं। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये रूबी स्टोन लेंगे तो इसके साथ ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ सुलेमानी अकीक आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे, ये पढ़े हुए सुलेमानी अकीक महदूद मिकदार में है। बुर्ज सजिटेरियस वाले, ये या वो है जो आपको तल्ख कलाम बना सकते हैं। अभी रूहानी ताकत आपको मिलेगी, आप पे इल्हाम ज़्यादा होंगे, लोगों के असल रूप वाजे होंगे। याद रहे, परख लें, समझ लें, वक्त का इंतज़ार करें। अगर वक्त से पहले ज़बान को हम कलाम करेंगे तो परेशानी मंजर आम पे आ सकती है। इन्वेस्टमेंट का सही वक्त ये है, किसी काम की शुरुआत के लिए सही वक्त ये है, लेकिन झगड़े से दूरी इख्तियार करें। हाजिर दिमागी को कायम रखें। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। अगर फिल वक्त जल्दबाजी से बचते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आप कुछ गलतियां करेंगे जिन गलतियों से काफ़ी चीज़ें परेशानी की तरफ जा सकती हैं। अभी खाने पे तवज्जो दें। सब फल ज़्यादा खाते हैं, वो चीज़ें जो आग में पका के खाई जाती हैं उनसे थोड़ी सी दूरी इख्तियार करते हैं। चिपचिपी तली चीज़ें कम खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत मुबारक है। जितना हो सके कुछ वक्त ताज़ा हवा में ज़रूर बैठें, इनसे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका फोकस भी चीज़ों पर ज़्यादा बेहतर होगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, और उसमें पता की बता सकते हैं बुर्ज कैप्रिकॉन वाले, ये हम आपकी ज़िंदगी में हलचल पैदा करेंगे। अल्लाह के फजल से अभी बिज़नेस में तरक्की, कामों में आसानी और किसी रिश्ते या दोस्त से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। याद रहे, बिज़नेस के अय्याम आ चुके हैं, फ़ायदे के दिन शुरू हो चुके हैं। आपको अपने आप पे तवज्जो देनी होगी, आपको अपने काम पे तवज्जो देनी होगी, आपको अपनी कामयाबी की तरफ राग़िब होना होगा। अल्लाह के फजल से अच्छे दिन तो शुरू हैं, लेकिन अगर आपके फ़ैसले अच्छे नहीं होंगे, फ़ैसले सही नहीं होंगे तो परेशानी मंजर यहाँ पे आ सकती है। इमोशनल फैसलों से बचें, जल्दबाजी गुस्से से बचें, हाजिर दिमाग को कायम रखें। तमाम परेशानियों से अल्लाह के फजल से आप दूर दूर होंगे। लाइट कलर ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने तो वो भी आपके लिए बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, उससे आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, ये अय्याम अल्लाह के फजल से आपको रुतबा, मंजिल, कामयाबी और दौलत देंगे। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये अय्याम आपको उन दिनों से, उन अय्याम से, उन लोगों से मिलाएंगे जिनकी तमन्ना आप बार बार करते हैं। अच्छा दोस्त भी मिल सकता है, खोया हुआ दोस्त भी मिल सकता है, बिछड़ी हुई से भी वापस से जुड़ सकते हैं, खोई हुई चीज़ें भी मिल सकती हैं। तभी हाजिर दिमाग रहें, मुतमईन रहें, चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रखें, और जितना आपका फोकस आज पे होगा उतना फ़ायदा आपके साथ आ मिलेगा। जितना यादों में उलझेंगे, पास्ट को याद करेंगे, फ्यूचर की टेंशन लेंगे, उतना ही परेशानी मंजर यहाँ पे आ सकती है। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पर ज़रूर जाएँ, पानी सबसे ज़्यादा पिए तो आपके लिए बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का, और इसमें आदम पत्थर इसके बता सकते हैं। बुर्ज स्पाइसेस वाले, ये या वो है जो आपको तल्ख कलाम बना सकते हैं। किसी गुस्से में आप नुकसान करेंगे,
کسی جلد بازی میں آپ نقصان کریں گے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ علمی حوالے سے بڑا مرتبہ ملے گا، لیکن آپ غصے اور جلد بازی میں کوئی نقصان کریں گے، تبھی غصے سے بچیں، جلد بازی سے بچیں، اللہ آپ کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رکھے گا۔ مصنوعی مٹھاس سے کم کھائیں، قدرتی چیزیں زیادہ کھائیں، قدرتی ماحول میں زیادہ بیٹھیں، اسکرین سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، تو یہ آپ کی طبیعت کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، آپ کی حاضر دماغی کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ بزنس ہے، اللہ کے فضل سے بڑی منزل آپ کو ملے گی۔ پانی سب سے زیادہ پئیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں، باہر کے کھانے کم کھائیں، تو فتح و کامیابی کے راستے عام ملیں گے۔ ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں پتھر اس کی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔